Now come to next topic. Balance of payment. So if you see, question has been asked from balance of payment also. Okay, question has been asked from balance of payment also. Now in balance of payment, first of all you have to know. So normally you have studied that there are two components: current account capital account. Now in current account we talk about two items: visible, invisible. Okay, visible, invisible. Capital account, there are, you can say foreign, or you can say investment, foreign investment, borrowings, and okay, borrowings, and in last I can say banking capital transaction. Okay, banking capital transaction. Okay, no, I'm not going to take any break. Okay, so we'll continue. Okay, banking capital transaction. Okay, next, apart from these two components, there are another component, that is forex reserve is also a part of or regarded as component of BOP, and last is net error and omission. नेट एरर एंड ओमिशन. तो अगर आप यहां पर देखोगे, जब हम बात कर रहे हैं विजिबल्स की, सो इन विजिबल्स वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, which is also known as merchandise trade. Okay, export and import of goods, which is also known as mercantile trade. Clear? Clear? So this is what you have to remember. Second, if you see, when we talk about invisible, so we are talking about export and import of services. We talk about factor income, or you can say net factor income. So basically factor income is that what you earn by investing. ओके तो अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोली, मैं बाहर से आया और मैंने किसी कंट्री में फैक्ट्री खोली. ओके सो वट एवर आई हैव इन्वेस्टेड, सो दैट इज स्टार्टिंग गिविंग मी रिटर्न, सो उसको मैं बोलूंगा फैक्टर इनकम. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट. So if I say in simple words, what is transfer payment? Means I am giving you money, but in return you are not giving me anything. Okay, that is known as transfer payment. For example, I have given you any gift in cash. Okay, but in return you are giving me, or you are saying me only thank you. So there is no exchange, or you can say money has been given, but in return no, I am not getting anything. Okay, gift. Similarly, grants. Okay, gifts, grants and remittances, all are part of transfer payment. So one type of basic question that they ask you, ki what is, or you can say what current account includes. So you have to tell to the examiner, or they will give you in option form, so you have to identify. Now when it comes to capital account, so here we have FDI and FPI. Okay, so here we have FDI and FPI. Okay, so here we have FDI and FPI. Next, when we talk about borrowings, so in borrowings, if you see, we have ECB, okay, external commercial borrowing,
Okay, apart from this, can you tell me what it includes? Tell me what it includes. I am waiting for your answers. Especially those who used to ask me a question online. So I am waiting for their answers. No reply. Okay. So I'll tell you. External assistance. Okay, external assistance, and in last, trade credit. Okay, trade credit. So this is what you have to know. Now, banking capital transaction. So what it includes, I'll tell you. So अगर एक एक करके देखें, तो यहां पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं कि मतलब एक साल के अंदर और इन वन फाइनेंशियल ईयर हाउ मच गुड्स वी हैव और हाउ मच एक्सपोर्ट वी हैव एंड हाउ मच import India have. So when you are maintaining that record, you call it visibles or mercantile trade. Similarly, in invisibles, you are talking about trade in services. तो अगर मैं visibles की बात करूं, तो in visibles our condition is negative. Negative means we are in deficit. Okay. जब मैं invisibles की बात करूं, so we are in positive. ओके, वी आर इन पॉजिटिव. और जब मैं फैक्टर इनकम की बात करूं, तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट टुगेदर इफ यू सी अगेन वी आर इन पॉजिटिव, बट आई एम सम टोटल इनविजिबल. सो वट एवर टोटल इज देयर दैट इज लेस देन दिस. Okay, so it is like this कि my gap in trade in visibles is around minus $200 billion. But when I sum total invisible, it is total around $120 billion. But overall, my current account deficit is minus $80 billion. So this is the situation. So ultimately, right now, India is having current account deficit. Okay, current account deficit. Now, investment. There are two types of investment: FDI and FPI. So if I talk about FDI, so whenever you purchase FDI, okay, whenever you purchase, or you can say FDI is coming in your country, so no doubt they are purchasing asset as well as control. तो अगर मैं किसी कंपनी में लगा रहा हूं, तो मैं उस कंपनी के शेयर्स तो खरीद ही रहा हूं, बट उस कंपनी का कंट्रोल भी खरीद रहा हूं. मींस आई विल पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंपनी. ओके, दैट इज FDI. तो FPI और यू कैन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट FII कैन बिकम योर FDI. सो फॉरेन FII क्या होती है आपकी? तो देयर आर टू थिंग्स, FDI एंड FPI. FPI के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ परचेज कर रहे हैं शेयर्स, बट वी आर नॉट कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड. सो FDI के अंदर आप शेयर्स भी परचेज कर रहे हो और कंट्रोल भी कर रहे हो कंपनी को, बट FPI के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हो. क्लियर? तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे. क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अब अगर मैं बात करूं, FDI और FPI की, ओके, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस एक में क्या कि आप परचेज कर रहे हो और मैनेजमेंट भी है, और एक में नहीं है. बट अगर FPI की मैं बात करूं, FPI FDI बन सकती है, FDI FPI नहीं बन सकती. सो वंस FDI विल बी देयर, इट विल रिमेन FDI ओनली. FPI कैन बिकम FDI. वो कब होगा? अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी में मैंने अगर 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो माय इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज FDI. तो अगर मैं फॉरेनर हूं और मैंने किसी कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, okay, so my investment will become FDI. So this was as per Mayaram committee. So there was one committee, Mayaram panel or Mayaram committee in 2014. This panel has given this recommendation. Okay, this panel has given recommendation. So you have to remember this thing. Okay, you have to remember this thing. So Mayaram panel.
Okay, I hope it is clear to everyone. Okay, so Mayaram panel. So I can take water so that gives some rest to my throat. ओके अब लेकिन एक चीज इसमें याद रखना, यूपीएससी कहां पर आपको ट्रैप मिलेगी। ये जो 10% वाला क्लॉज है, दिस 10% क्लॉज इज ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, बट अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो ये 10% वाला क्लॉज नहीं मैटर करता। क्लियर? तो ये जो 10% वाला क्लॉज है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। अगर अनलिस्टेड कंपनी हो आप, वहां पर अगर आपने आधा % भी इन्वेस्ट कर दिया या कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया, वो एफडीआई ही ट्रीट होगा। क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? अब अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो एफडीआई दो तरह की है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आप स्टार्टिंग से उसके अंदर बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, लाइक अमेजॉन, तो अमेजॉन का पहले कोई बेस नहीं था। ओके, अमेजॉन का पहले कोई बेस नहीं था। ओके, बट अब अमेजॉन का बेस है। ओके, बट अब क्या है, अमेजॉन का बेस है। ओके, तो अल्टीमेटली पहले जब इंडिया में आई थी अमेजॉन तो कोई बेस नहीं था, तो वो क्या ग्रीन फील्ड है। बट अगर मारुति सुजुकी की बात करूं, मारुति ऑलरेडी वाज देयर, इंडियन कंपनी, सुजुकी केम एंड इन्वेस्टेड, सो उसको हम कहेंगे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट है आपकी, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट एफडीआई के रूट्स ऑफ एफडीआई। तो अगर मैं पहले ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपकी ग्रीन फील्ड एफडीआई आती है एज कंपेयर टू ब्राउन फील्ड। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट। अब मैं अगर रूट्स की बात करूं तो मेरे पास दो रूट्स है एफडीआई आने के, ऑटोमेटिक रूट एंड you can say government route. So in automatic route you just have to register yourself before coming to India and you can start or invest in India. But अगर मैं गवर्नमेंट रूट की बात करूं तो यहां पर आपको अप्रूवल लेनी होती है। ओके, यहां पर आपको क्या लेनी है, अप्रूवल। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड। क्लियर? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड। क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो आई होप it is clear to you. Okay, now some students, one student is saying राकेश रेस्ट लेना चाहिए, although लेंगे रेस्ट लेकिन सिलेबस पहले खत्म करा ले फटाफट आपका। ओके, सो ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। क्लियर? now there are some areas where FDI is restricted. Okay, where FDI is restricted. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कौन से एरियाज है जहां पर FDI रिस्ट्रिक्टेड है, सबसे पहले तो आप देखोगे एटॉमिक एनर्जी। क्लियर? एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर देयर इज अ प्लांट इन कुदानकुलम। ओके, कुदानकुलम में भी प्लांट है, ठीक है, वहां पर तो रशिया है। रशिया वहां पर टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो देयर इज अ डिफरेंस कि मैं अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा हूं, ओके, तो वहां पर अगर आप देखोगे रशिया सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, ओके, इन कुदानकुलम प्लांट। सो इट इज नॉट गिविंग एनी, यू कैन से सो इट इज नॉट, यू कैन से अबाउट कि वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ओके, सेकंड, रेलवे ऑपरेशंस। सो अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रेलवे ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो मैं रेलवे की भी अगर बात करूं तो हम रेलवे में क्या कर रहे हैं, बेसिकली रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना है तो ठीक है। रेलवे ऑपरेशंस हम बोलते हैं कि जब ट्रेन आपकी एक रूट से दूसरे रूट पे जा रही है, वो है रेलवे ऑपरेशंस। तो वहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली you can say betting, lottery, you can say lottery business, casino, इन सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। सिमिलरली चिट फंड एंड निधि कंपनी, चिट फंड एंड निधि कंपनी। सो यू हैव सीन हेरा फेरी मूवी, लक्ष्मी चिट फंड। ओके, सो ऑटोमेटिकली यू नो व्हाट इज चिट फंड। ओके, क्लियर?
सिमिलरली अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे मेजर फूड ग्रेन्स है लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, वहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है। बट यही अगर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, अगर यहां की बात करूं तो यहां पर अलाउड है। ओके, तो यहां पर अलाउड है। सीड मैन्युफैक्चरिंग यहां पर अलाउड है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? यस, पैसा ही पैसा होगा, रोनाल्डो। ओके, क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ही एरियाज में अलाउड है। ओके, बट जो मेजर क्रॉप्स है वहां पर अलाउड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एफडीआई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते इंडिया में। ओके, अल्टीमेटली क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी खरीद ली उन्होंने तो फिर एक टाइम आएगा वो कहेंगे अब ये हमारा एरिया हो गया। ओके, सो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ कम टू एफपीआई। एफपीआई में दो चीजें हैं, एक है आपका एफआईआई, दूसरा है आपका डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। एफआईआई की बात मैं करूं तो एफआईआई के अंदर क्या है बेसिकली, ओके, एफआईआई के अंदर बेसिकली व्हाट इट इंक्लूड्स, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको मैं कहूंगा एफआईआई। बट उनको इन्वेस्ट करने से पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को सेबी से। क्लियर? अब दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि एफआईआई को हम हॉट मनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी वोलेटाइल इन नेचर। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे, अगर उनको कहीं और अच्छा प्राइस मिल रहा होगा तो दे विल शिफ्ट देयर बेस टू दैट कंट्री। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि अगर मैं एफआईआई की बात करता हूं, ठीक है, एफआईआई में इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट के ऊपर आऊं तो आपके पास तीन तरह की डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एडीआर का मतलब क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो एक समझाऊंगा, बाकी के सब में सेम क्लॉज है। अब एफआईआई में क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो उस शेयर मार्केट से इंडियन कंपनी को पैसा मिलता है। क्लियर? तो ये हो रहा है। अगर सपोज कर लो इंडियन कंपनी के पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा थ्रू शेयर मार्केट, तो इंडियन कंपनी भी फॉरेन जा सकती है। कैसे? इंडियन कंपनी फॉरेन, जैसे अगर सपोज कर लो इंडियन कंपनी किसी अमेरिकन बैंक को कांटेक्ट करेगी, अमेरिकन बैंक आफ्टर चेकिंग ऑल द क्रेडेंशियल्स, इफ दे अलाउ तो वो क्या करेंगे, उनके बिहाफ पे एडीआर इश्यू कर देंगे। कहां पर? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। अब अमेरिकन पर्सन अप्लाई करेगा एंड इन दिस वे इंडियन कंपनी विल गेट मनी। ओके, दिस इज कॉल्ड एडीआर। सिमिलरली जीडीआर के अंदर आप बेसिकली इट्स अ ग्लोबल टर्म or you can say global. So here if suppose I want to raise money from European Union, okay, or European stock exchange, so Indian company can go there. Okay, and in IDR opposite will happen. So अगर any कोई foreigner company है वो Indian stock market से पैसा उठाना चाहती है तो they will contact Indian bank and automatically Indian bank if they allow they will you can say list the stock of foreign company on IDR. So this is what you have to remember. Clear? So I hope it is clear till here. Please tell me in comment section. Is it clear or not? Is it clear or not? Okay. Okay.
Okay, so this is what you have to remember. Now moving further, there is concept of P notes. So basically if you see P notes, okay, so there are some foreign investors, they don't want to get registered themselves in Indian stock market. So as I told you that if you want to invest in Indian stock market, you have to get yourself registered with Government of India, okay, or you have to, not government, SEBI, you have to get registered yourself with SEBI. But sometimes these investors are not interested. तो अगर आप देखो, आपने में से भी अगर कोई इन्वेस्ट करता होगा, तो जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो वो रजिस्टर करना ही होगा आपको, अपने आप को, कि आप रजिस्टर कर रहे हो। ओके, तो जब आप रजिस्टर कर रहे हो, तो जब आप रजिस्टर कर रहे हो, क्लियर, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका डीमैट अकाउंट खुल रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ है। अब नॉर्मली होता क्या है, एक बार अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला, तो डीमैट अकाउंट में जब आप पैसे डाल रहे हो, उस पैसे को, मतलब आपने बैंक से पैसे डालोगे, उस पैसे को आप शेयर मार्केट में लगाओगे। अब जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदोगे और बेचोगे, तो वो पैसा दोबारा डीमैट अकाउंट में आएगा। अब डीमैट अकाउंट से यहां पर लाना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो फॉरेनर पर्सन क्या करता है कि दे डोंट वांट टू ओपन द डीमैट अकाउंट। व्हाई? बिकॉज देयर मनी गेट ब्लॉक्ड हियर। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, थ्रू सम अदर इन्वेस्टर, दे यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। ओके, सो सपोज आप फॉरेनर हो और मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है, यहां पर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं, तो आप मुझे पैसे दोगे और आपके बिहाफ पे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। ओके, मैं आपको उसके बदले में पी नोट्स दूंगा। इसको, ये चल रहा है आपका पी नोट्स के अंदर। सो दिस इज द मैकेनिज्म दैट हैपेंस इन पी नोट्स। क्लियर? 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 सो दिस इज द थिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग। चंद्रशील राव, यू आर सेइंग सर डर लग रहा है। किस चीज से डर लग रहा है भाई? ओके, ओके, क्लियर? So this is what you have to remember. Okay, this is what you have to remember with respect to P notes. Okay, so this is about, you can say, concept of P notes. Okay, P notes कोई offshore derivative instrument बोलते हैं ना। Offshore means it is coming from outside. Okay, it is coming from outside. Okay, अध्ययन मित्तल। Okay, so this is what you have to remember. Okay, so यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपका ये पी नोट्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, पी नोट्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ओके, क्लियर? डोंट वरी, अगर कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे तो हर चीज याद रहेगी। क्लियर? तो ये आपका पी नोट्स का कॉन्सेप्ट है यहां पर। ओके, तो अल्टीमेटली वी हैव कवर्ड इन्वेस्टमेंट पार्ट। अब अगर मैं बोरोइंग्स पे आऊं, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हियर मींस दैट बोरिंग इज टेकन फॉर, और यू कैन से टेकन बाय द, यू कैन से प्राइवेट कंपनीज। ओके, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ओके, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो जब भी बोरिंग हम ले रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, ओके, प्राइवेट सेक्टर अगर बाहर से बोरिंग ले रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब इसमें एक चीज याद रखना, जब भी बोरिंग लेगा प्राइवेट सेक्टर, तो मिनिमम 3 इयर्स के लिए लेगा। मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ओके, मिनिमम 3 इयर्स के लिए लेगा ही लेगा। ओके, और जब भी लेगा विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो इसमें मार्केट रेट है वो डिटरमाइंड, जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट डिटरमाइन करती है, इंटरनेशनल मार्केट। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लंडन इंटर ऑपरेटर बैंक रेट, लिबोर। ओके, सो जो भी लिबोर है, लिबोर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आपका मार्केट। क्लियर? क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? सो दिस इज अबाउट, यू कैन से
फॉरेक्स रिजर्व, और सॉरी यू कैन से ईसीबी। अब एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करें, एक्सटर्नल असिस्टेंस जितने भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनजीओस, they used to take borrowing from outside at very less rate of interest, and that is for long time. Okay, so for example, Japanese government has given money to the Indian government for freight corridors. Okay, so उसको हम कहेंगे external assistance. So this is what you have to remember. Okay, उसको हम कहेंगे क्या? External assistance. Okay, अब यहां पर देखो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, although they are not going to ask you external assistance, they will ask you what is the difference between, or you can say external assistance and grants. तो अगर सपोज उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया एक्सटर्नल असिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सो मोस्टली यू मार्क आंसर करंट अकाउंट. व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रांट, सो देयर इज अ डिफरेंस. क्लियर? तो एक्सटर्नल असिस्टेंस को हम सॉफ्ट लोन भी बोलते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस को हम सॉफ्ट लोन भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ कम टू बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन. तो जब मैं बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन से बात कर रहा हूं, तो अगर बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहां पर देखो कि अगर कोई फॉरेनर, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, दे हैव देयर प्रेजेंस इन इंडिया आल्सो, सो दे यूज्ड टू हैव अ डेली ट्रांजैक्शंस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद वोस्ट्रो नोस्ट्रो, दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके, तो अगर कोई डॉलर्स में मैं अकाउंट मेंटेन करता हूं इंडिया में, तो उसको हम कहेंगे बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन. क्लियर? सेकेंड, अगर आप देखो कि अगर कोई टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है, वो भी क्या करेगा, 6 महीने 7 महीने या 1 साल के लिए आ रहा है. ओके, तो अल्टीमेटली 2-3 महीने के लिए भी अगर आ रहा है, तो उसको डॉलर्स को कन्वर्ट करेगा रुपी में, और वो यहां पर एक अकाउंट मेंटेन करेगा. ओके, तो वो भी आपका बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो एक तरह से कह सकते हैं, अगर कोई फॉरेन एंटिटी और नॉन रेजिडेंट इज मेंटेनिंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, आइदर इन इंडियन रुपी और इन डॉलर्स, तो वो पार्ट किसका बनेगा? बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन का. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ कम टू फॉरेक्स रिजर्व, आवर नेक्स्ट कंपोनेंट. सो फॉरेक्स रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं, तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, ओके, फॉरेक्स रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आपके फॉरेक्स रिजर्व का सबसे पहले पर्पस बताओ क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पर्पस? तो देखो, फॉरेक्स रिजर्व में कुछ नहीं है. फॉरेक्स रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो फॉरेक्स रिजर्व का 2 पर्पस है. पहली बात कि जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही होती है, तो फॉरेक्स रिजर्व को हम यूज करते हैं. स्पेशली अगर मैं डेप्रिशिएट की बात करूं, तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, तो फॉरेक्स रिजर्व में से हम डॉलर्स को निकाल के मार्केट में डालते हैं, ताकि एक्सचेंज रेट को हम दोबारा स्टेबल कर सके. ओके, नंबर 1. और जब भी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब यह कि डॉलर्स की सप्लाई बढ़ गई है, तो हम डॉलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फॉरेक्स रिजर्व में लेके जाते हैं. तो आप कभी भी देखना, जब भी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही होगी, तो अगले दिन न्यूज आती है फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया. सिमिलरली जब भी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, तो न्यूज आती है फॉरेक्स रिजर्व आपका अप हो गया. तो अल्टीमेटली देयर इज अ रिलेशन. ओके, सेकंड, फॉरेक्स रिजर्व को हम यूज करते हैं जब भी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी कंट्री में रोज रोज नहीं आ रहा. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग आल्सो. सो इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन. सो normally the you can say forex reserve is used whenever there is crisis. Okay, whenever there is, you can say, exchange rate fluctuation, or second is in the time of crisis. तो अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व देखूं, फॉरेक्स रिजर्व को आप 4 फॉर्म्स में मेंटेन करते हो. नंबर 1, अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं, सबसे पहले तो आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन करते हो. तो देयर आर 5 फॉरेन करेंसीज which are called as hard currencies. So for example, US dollar, euro, yen, pound and yuan. Okay, again I am repeating, US dollar, euro, yen, yuan and pound. Okay, so there are 5 hard currencies you maintain in it. Second, gold,
third special drawing right, that is of IMF, and fourth is reserve tranche, okay, जिसको हम गोल्ड ट्रांच भी बोलते हैं, अगेन दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ IMF, ओके। तो इन चार फॉर्म्स में हम मेंटेन करते हैं आपका फॉरेक्स रिजर्व, ओके। अब आता है नेक्स्ट आपका नेट एरर एंड ओमिशन, ओके, नेट एरर एंड ओमिशन। तो अगर मैं नेट एरर एंड ओमिशन की बात करूं, ओके, नेट एरर एंड ओमिशन की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आपको पता है कि आपकी कंट्री में पैसा भी एंटर होता है थ्रू स्मगलिंग, और यू कैन से थ्रू काउंटरफिट नोट्स। तो वो जो पैसा ऐड हो रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं आरबीआई को एक एक्सपेक्टेड अनुमान होता है, मींस ऑब्जर्वेशन होती है कि इतना कुछ ना कुछ एस्टिमेट होगा कि इतना पैसा आया है, तो वो नेट एरर एंड ओमिशन का पार्ट बनता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ अनदर पार्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दैट यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो करता है। तो एक तो होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करूं, तो यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है टू डिसाइड द एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिटरमाइंड। सो यू कैन से मार्केट डिटरमाइंड मींस मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर, दैट विल डिटरमाइन। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया यूज्ड टू फॉलो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। तो मैनेज एक्सचेंज रेट के अंदर, ओके, मैनेज एक्सचेंज रेट के अंदर अगर मैं बात करूं, वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। सो जब मैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, जब मैं फिक्स्ड और इसके बात कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली एक रेंज तक यहां पर मैं बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं कि अगर इस रेंज के अंदर है तो यू कैन से इट इज डिसाइडेड बाय फ्लेक्सिबल, बट अगर इस रेंज से बियॉन्ड जाएगा तो इट इज डिसाइडेड बाय फिक्स्ड। क्लियर? सो दिस इज अ थिंग, सो वी यूज्ड टू कॉल इट मैनेज। तो अगर मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं कि आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपकी करेंसी इस रेट के अंदर है 40 to 70, तो दिस whatever price is in between, exchange rate is in between, that is decided by, you can say, flexible, otherwise it is fixed. Clear? So this is what you have to remember. Clear? Now we'll come to concept of depreciation and appreciation. So in concept of depreciation and appreciation, usually there are two questions. First they ask the reason for depreciation and appreciation, and then they'll ask the impact. So here where they used to confuse you, first I want to tell you that when you talk about reasons, so ultimately, as I have explained you earlier also in today's class itself, in marathon session, that every economy has limited foreign currency, or you can say dollars. Okay, so every economy has limited foreign currency or dollars. Okay, now if you see dollars, so whenever there is increase in the supply of dollars, that is responsible for appreciation, and whenever there is a decrease, that is responsible for depreciation. So first of all, if I ask you what is appreciation and depreciation, so normally in case of depreciation, you says that the value of you can say Indian currency has reduced. So rather than saying that value of Indian currency has reduced, you can say that dollar has become costly. So ultimately, suppose $1 is 50 rupees and tomorrow $1 becomes 60 rupees. So that is a case of depreciation. So you can easily say that now dollar has become costly, or dollar is costly now. Okay, dollar is costly now. Whereas when $1 is,
you can say 40 rupees. So there you will say that now dollar has, you can say the price of dollar has reduced, or you can say it has become cheap. So that is appreciation. Okay, so that is what appreciation. So this is what you have to remember. Clear? Clear? So this is what you have to remember. Clear? Now ultimately if you see, now ultimately see, when you talk about this thing, okay, so ultimately you have to see that those who are responsible for supplying the dollars in an economy, so it is exporter, FDI, foreign investor investing in share market, okay, and if suppose Indian companies are using ADR, GDR, so they are responsible for this. If foreigners are coming to India and they are opening bank account in India, so banking capital transaction, so all these are responsible for increasing the dollar supply. So whenever they play a more role, so it means currency is going to appreciate. But if suppose assuming that those who are responsible for increasing dollar supply, they are constant, or you can say they are putting constant supply of dollar, but now demand has increased for the dollars. So ultimately who are responsible for increasing the demand? Importer. Okay, if suppose FDI is going outside, if suppose foreign investors, we call hot money, is going outside, so like in year 2021 there was black swan event, so they are responsible for, you can say, appreciation or depreciation. Now whenever there is a depreciation, so it is, you can say, going to benefit exporter, but in case of appreciation, importer is going to benefit. So this is what you have to remember. But if you see that if your country is net importer, like in case of India, so India is a net importer. So India is a net importer. So in case of net importer, you will see your current account deficit is going to increase. But if country is a net exporter, so in that case current account deficit is going to move toward current account surplus. So India जो है, India net importer है, okay, and that is why अगर आप देखोगे जब भी currency depreciate होती है तो our current account deficit further increases, okay, but अगर India net exporter होता तो हमारा current account surplus में जाता. Clear? So already you can say, if I see with respect to individual exporter, okay, it is going to benefit, okay, in case of depreciation. But if I see with respect to a country, if country is net importer, it is going to, you can say, bad for the country. So for India, depreciation is not good, okay, but for China, depreciation, where they use a word devaluation, is good. Clear? So this is what you have to remember. Now moving further, okay, now moving further, now now you have to understood this thing, that sometimes due to inflation also, so for example, if inflation is in my economy, you please understand it clearly, okay, if you want to understand the concept of real exchange rate and nominal exchange rate. So if in my country there is inflation, but in other countries, or you can say rest of the world, there is no inflation, or you can say you make their inflation constant, okay, तो अगर यूएस की मैं बात करूं या और कंट्रीज की बात करूं, वहां पर जो प्राइसेस है वही है, बट मेरी कंट्री में किसी भी कारण से प्राइस बढ़ गया, जैसे ही मेरी कंट्री में प्राइस बढ़ेगा तो जो यहां पर हमारे इंपोर्टर्स हैं ये क्या करेंगे, बाहर से प्रोडक्ट मंगवाना शुरू कर देंगे, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, ओके, अल्टीमेटली करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी. और जब अभी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, ओके, सो यू कैन से करेंसी डेप्रिशिएट किसकी वजह से कर रही है, इन्फ्लेशन की वजह से कर रही है. किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कर रही है. अब ये जो करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, ओके, ये जो करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, ओके, ये जो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, ओके, तो आप ये देखोगे इस एक्सचेंज रेट को आप कहोगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट,
ओके और अब इस नॉमिनल एक्सचेंज रेट का दूसरी चीजों पे भी इफेक्ट आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके बट अगर मैं इसको जो इन्फ्लेशन से पहले थी, इन्फ्लेशन के अकाउंट से मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अगर मैं एडजस्ट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, तो वो जो आएगी वो मेरी होगी रियल एक्सचेंज रेट। तो इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है, तो आपके इसी पे क्वेश्चंस आते हैं नॉमिनल एंड रियल के। क्लियर? Depreciation means increase in exchange rate नहीं, depreciation means that now dollar has become costly or you can say the value of rupee has reduced, so ultimately that is depreciation। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो एक से कि जैसे करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है और आई एम यूजिंग डेप्रिसिएशन, इट मींस डॉलर हैज नाउ बिकम कॉस्टली। सो अर्लियर डॉलर वाज 50 रुपीस एंड नाउ इट इज you can say 80 rupees, so it means dollar has now become costly। okay, तो अब यहां पर याद रखो जब भी इन्फ्लेशन की वजह से एक्सचेंज रेट होगा, और वो कब होगा कि जब मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन है बट दूसरी कंट्रीज में नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या करना शुरू करेंगे, इंपोर्ट करवाना शुरू करेंगे। ओके और जब वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी डेप्रिशिएट होनी शुरू होगी, और जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपका जो एक्सचेंज रेट आएगा नया, ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसको हम कहेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब मैं जब इस नॉमिनल एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करूंगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, उसको कहूंगा रियल एक्सचेंज रेट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ओके सी एनोनिमस मैन, जब भी आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर आप इकोनॉमी में अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, okay, just like mathematics, so when you study quadratic equation, so there you talk about two variables keeping other variables constant। यहां पर भी आप जब बात कर रहे हो इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट की, तो आपको दूसरे वेरिएबल्स कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो दिस इज द लॉजिक। ओके दिस इज द लॉजिक दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके अब लास्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्टेबिलिटी का, एंड देन विल टॉक अबाउट ग्रोथ चैप्टर। अब लास्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्टेबिलिटी। ओके तो अगर मैं कन्वर्टेबिलिटी की बात करूं, ओके कन्वर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्टेबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो कन्वर्टेबिलिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इट इज यू कैन से परमिशन टू कन्वर्ट योर करेंसी, और यू कैन से परमिशन एज वेल एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, जब मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सो देयर इज नो लिमिटेशन, आई कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एन नंबर ऑफ, और यू कैन से कितना भी मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर लूं, मेरी कंट्री मेरे पे लिमिट नहीं लगाएगी कि बस आपको इतने ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है। बट अगर मैं बोरिंग लेता हूं तो मेरी कंट्री मेरे पे लिमिट लगाती है, आप इतनी ही बोरिंग ले सकते हो। ओके सो जहां पर लिमिट लग गई मतलब वहां पर आपकी करेंसी कन्वर्टेबल नहीं है, बट जहां पर लिमिट नहीं लगी वहां पर आपकी करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल है। तो अगर आप देखोगे इंडिया में करंट अकाउंट इज फुल्ली कन्वर्टेबल, ऑल्दो इन नॉर्मल केसेस यू impose a ban on export and import, but that is rarely you impose, but in normal times there is no such ban। clear? but obviously अगर $1 1 रुपी के अराउंड हो गया then it will be lethal for us। okay और you can say डॉलर और रुपी आज बराबर हो गए। okay तो मतलब $50 आप 50 रुपए में खरीदो, बट ऐसा कभी होगा नहीं। सो दैट इज अ हाइपोथेटिकल केस। क्लियर? सो उसके लिए आपको अपनी इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रही है, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस, वो बताऊंगा आपको कैसे है। तो अल्टीमेटली अगर आप कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हो तो करंट अकाउंट पे कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली अलाउड है, बट कैपिटल अकाउंट में देयर आर लिमिट्स। ओके सो दैट इज पार्शियली कन्वर्टेबल। Okay, capital. So that is why we say that ki India's BOP is partial convertible. Okay, India's BOP is
partial convertible. So this is what you have to remember. अब तारापुर कमेटी हमने फॉर्म करी थी, तारापुर. So remember the name of this committee, तारापुर कमेटी. अब तारापुर कमेटी कहती है कि हमें फुल्ली कन्वर्टेबल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट वो आप तभी शिफ्ट होगे जब आपका फिस्कल डेफिसिट 3% हो ऑफ जीडीपी हो, इन्फ्लेशन आपकी स्टेबल हो. ओके. नंबर थ्री, आपका बैंकिंग सिस्टम फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तभी आप फुल्ली कन्वर्टेबल की तरफ जा सकते हो. ओके. सो दीज आर मेजर पैरामीटर्स. ओके. बट अगर मैं देखूं, जब मैं बात कर रहा हूं, ओके, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसकी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, जब मैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात कर रहा हूं, ओके, तो उसके लिए आपको फुल्ली कन्वर्टेबल होना पड़ेगा. तो जब तक आपकी इकोनॉमी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होगी, तब तक आप इंटरनेशनल रूपी की बात कर ही नहीं सकते, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. ताकि अगर आप देखोगे डॉलर का जो सप्लाई है पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है और इंडिया रूपी का हमारा बहुत कम है, तो अगर आप चाहते हो $1 1 रूपी के अराउंड हो, तो आपको रूपी का भी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा या फिर डॉलर की सप्लाई कम कर दो. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो अल्टीमेटली इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू इंटरनेशनलाइज योर करेंसी. ओके. तो आपकी करेंसी जितनी स्ट्रांग होगी, मतलब जितने आप कन्वर्टेबल होगे, आपके जितने जो मैक्रो पैरामीटर्स है जितने स्टेबल होंगे, तभी आपकी करेंसी, आपकी कंट्री वहां जाएगी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की तरह. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट, ग्रोथ. तो ग्रोथ के अंदर अगर मैं बात करूं, ओके, okay, now some students are asking purchasing power parity. See, purchasing power parity कुछ नहीं है. तो अगर मैं purchasing power parity की बात करता हूं, ओके, तो अगर मैं purchasing power parity, उसके अंदर आप सिंपल सा इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे याद रखना कि इंडिया में मैं कितने रुपए में जो बेसिक प्रोडक्ट्स खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में ये बास्केट है या 10 आइटम्स है, कितने रुपए में खरीद रहा हूं, सेम प्रोडक्ट मैं फॉरेन कंट्री में कितने के खरीद रहा हूं. ओके. मतलब डॉलर स्पेंड करके कितने के खरीद रहा हूं. तो आप जब बोलते हो, जैसे समटाइम्स यू हैव लिसन दैट सम पीपल यूज्ड टू से दैट इंडिया में मेरे को सर्वाइव करने के लिए पर मंथ 50,000 चाहिए, फॉर एग्जाम्पल. यही अगर मैं कोई यूएस में रह रहा हूं, तो मेरे को वहां पर इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए, 1,50,000. तो ये क्या है मेरा परचेजिंग पावर पैरिटी. क्लियर. नाउ कम टू ग्रोथ चैप्टर. Okay. Although some are asking questions, so some of your questions are, you can say, means oriented. So see, I have to cover only here important questions जहां से आपके questions ज्यादा आते हैं. Clear. अब हम बात करते हैं ग्रोथ चैप्टर की, जहां पर हम बात करेंगे जीडीपी. अब सबसे पहले अगर मैं जीडीपी की बात करूं, ओके, सबसे पहले अगर मैं जीडीपी की बात करूं, क्लियर, तो जीडीपी के अंदर जो आपकी कंट्री है, तो अगर मैं देखूं तो कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू ले रहा हूं इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके, दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जीडीपी. अब नो डाउट इन एग्जाम नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग, but you have to remember this thing. Whenever you are calculating GDP, you does not take into account intermediate goods. Second, you does not take into account second hand goods. You does not take into account second hand goods. So this is what you have to remember. Number 3,
Number 3. Okay, number 3, if you see second hand goods. Number 3, if you see, when we are calculating GDP, you does not take into account, you can say, lottery, betting, ट्रांसफर पेमेंट एक्सेट्रा. सो जो भी आपने ट्रांसफर पेमेंट और इसमें हमने पढ़ा है, लॉटरी, बेटिंग, ट्रांसफर पेमेंट, हम इसको नहीं लेते. नंबर 4, यू डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेकेंडरी शेयर्स, और यू कैन से शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट. ओके, सो वी डोंट टेक इनटू दिस अकाउंट. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. सो हम 4 चीजें नहीं लेते हैं. ओके, क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइनल गुड्स में होती है, तो इसलिए हम नहीं लेते. सेकेंड हैंड गुड्स को भी इसलिए हम नहीं लेते क्योंकि इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी पुराने सालों में कंसीडर कर चुके हैं. तो अगर सपोज कर लो मैंने 2020 में एक कार ली, ओके, और 2022 में मैंने बेच दी, ओके, तो जब मैं बेच रहा हूं तो मैं उसको नहीं कंसीडर करूंगा. क्लियर? क्योंकि उससे भी तो मैं पैसा ही कमा रहा हूं. तो फाइनल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर जा चुके हैं, ओके, प्लस उनको आप काउंट कर चुके हो. तो सेकेंड हैंड गुड को, मतलब कार को आप ऑलरेडी 2020 में काउंट कर चुके हो, तो 2022 में जब मैं बेच रहा हूं तो उसको काउंट नहीं करेंगे. क्लियर? लॉटरी, बेटिंग और ट्रांसफर पेमेंट. सो नो डाउट व्हेन समवन इज गिविंग मी सम मनी, so in return I am not producing any good, final good and services. So this is what you have to remember. So that is why we don't take into consideration. Okay. Similarly secondary market. So आप जब शेयर्स खरीदते हो तो वो पहले आईपीओ बनते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में. इसलिए सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो सेकेंड हैंड शेयर्स होते हैं. बट हाँ, जब भी आईपीओ निकल रहे हैं वो नए शेयर्स हैं, उनको कंसीडर करते हैं. तो आईपीओ को कंसीडर करते हैं, बट आईपीओ को जो फर्दर सेल कर रहा है उसको नहीं कंसीडर करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कंसीडर. क्लियर? सो ये हम आइटम्स को नहीं लेते, तो ये आपको याद रखना है. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात करता हूं तो जितनी भी, अगर सपोज कर लो इंडिया के अंदर कितनी सारी फॉरेन एम्बेसीज है, तो उन फॉरेन एम्बेसीज के अंदर जो भी आपका एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को भी हम फाइनल गुड्स में नहीं लेते. क्यों? क्योंकि वो जो एक्टिविटीज है वो उनकी कंट्री में ऐड होती है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप फी पे करते हो, तो वो भी क्या है? फाइनल सर्विस है. ओके, बट अल्टीमेटली उसकी वैल्यू हम अपनी जीडीपी में नहीं लेते. क्यों? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमें पैसे नहीं मिल रहे उसमें. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट व्हाटएवर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एम्बेसी, so we don't take into consideration. Okay, so this is what you have to remember with respect to GDP. Now जब हम GNP की बात करते हैं तो GNP का जो रिलेशन है वो क्या है? जो आपने फॉर्मूला देखा होगा, GDP प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम. सॉरी, प्लस आएगा, नॉट माइनस, प्लस नेट फैक्टर इनकम. सो बेसिकली what is net factor income? GDP plus net factor income means income earned by Indians outside India, income earned by Indians outside minus income earned by foreigners within India. Okay, so ultimately in our case this is less, this is more. So ultimately GDP minus some value will be there. Why? Because income earned by foreigners within India is more as compared to incomes earned by Indians outside. So ultimately GNP in our case is always less than GDP. So this is what you have to remember. Okay, this is what you have to remember. Okay, so ultimately if you see GNP, in GDP we talk about the monetary value of final goods and services, whereas in GNP we talk about what all Indians together are earning the income, that is GNP. Clear? तो सारे इंडियंस मिलके कितना कमा रहे हैं, चाहे इंडिया के अंदर चाहे बाहर, उसको हम कहते हैं GNP. तो बेसिकली हम वो देख रहे हैं इसमें. अब एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन.
सो यू कैन से मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको कह सकते हो वियर एंड टियर। तो जब आप इसको, सो नो डाउट आप जब अपनी जीडीपी ग्रो करती है तो देयर इज यू कैन से डेप्रिसिएशन आल्सो, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। सो वो कितनी है उसको जब आप जीडीपी से माइनस करते हो तो आपके पास मिलता है एनडीपी। ओके, फिर उसके बाद देयर इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, इट इज कॉल्ड एनएनपी। सो ऑल्दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट सो मच। अब जो इंपॉर्टेंट है, अब जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपका। हमारे पास दो तरह के प्राइसेस हैं। ओके, एक है आपका फैक्टर कॉस्ट, एक है मार्केट प्राइस। अगर इनके बीच में रिलेशन देखोगे तो क्या आता है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो अल्टीमेटली फैक्टर कॉस्ट इज अ प्राइस एट द गेट ऑफ फैक्ट्री। तो मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो प्राइस आया उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, उसको हम कहते हैं क्या, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? बट मार्केट प्राइस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो यू कैन से मार्केट प्राइस जो आप फाइनली परचेज कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, बट इन सम केसेस वी आर गिविंग सब्सिडीज ऑल्सो, सो देयर वी सब्ट्रैक्ट द सब्सिडीज। तो अल्टीमेटली ये आपका रिलेशन बनता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। अब जीडीपी बेसिकली अगर आप देखोगे, जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे पता है कि मेरी इकोनॉमी में, अगर सपोज कर लो, एज्यूम कर लो, देयर इज ओनली वन कंपनी एंड दैट इज मेकिंग कार, तो जितनी भी कार प्रोड्यूस हुई है एक साल में उसके प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे पास दो तरह के प्राइस है, एक तो कार बनाने का प्राइस जो फैक्ट्री के अंदर है उसको मैं कहूंगा फैक्टर कॉस्ट। एक प्राइस क्या है जो मेरा मार्केट में कंज्यूमर पे कर रहा है जब टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो हो गया मेरा मार्केट प्राइस। सो अल्टीमेटली अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करता हूं फैक्टर कॉस्ट पे तो मैं उसको बोलूंगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं जीडीपी करता हूं मार्केट प्राइस पे तो मैं उसको बोलूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? क्लियर? अब मैं अगर बात करूं, तो आप समझ गए फैक्टर कॉस्ट है और दो प्राइसेस है मार्केट प्राइस। अब इसमें भी अगर मैं देखूं दो तरह के फर्दर प्राइसेस है। अब अगर मेरे को एक्चुअल में जीडीपी निकालनी है तो मेरे को बेसिकली जीडीपी के थ्रू मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। ओके, मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। क्लियर? तो मैं अगर अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन देखता हूं, ठीक है, वो मेरे को तभी मिलेगी जब मेरे पास बेस ईयर के प्राइसेस होंगे। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेस ईयर है 2011-12। तो जो मेरे बेस ईयर के प्राइसेस होते हैं उसको मैं कहता हूं कांस्टेंट प्राइसेस और कांस्टेंट फैक्टर प्राइसेस। सिमिलरली मेरे पास एक है कांस्टेंट मार्केट प्राइस, और जो मेरा प्रोडक्ट है उसका करंट प्राइस है, ओके, उसको मैं कहूंगा करंट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली करंट मार्केट प्राइस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जस्ट आई विल टेक वन एग्जांपल। सपोज कर लो आई एम मेकिंग और यू आर हैविंग अ फैक्ट्री एंड यू आर मेकिंग पेन। सो आज इस पेन का जो प्राइस है यू कैन से फैक्टर कॉस्ट, आज जो करंट इसका जो प्राइस है, करंट फैक्टर कॉस्ट जो है इसका, फॉर एग्जाम्पल लेके चलो वो है 15 रुपीज, बट बेस ईयर, सो आज के आपका 2023, ओके, बेस ईयर तो 2011-12 है। तो 2011-12 में अगर मैं लेके चलूं पेन का प्राइस था 10 रुपीज, तो ये मेरा हो गया कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज कर लो इस साल फॉर एग्जांपल लगा लो कि आपकी इकोनॉमी में एक ही पेन बन रहा है, ओके, आपकी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज पेन, ओके, दैट इज पेन। तो अगर मेरी इकोनॉमी में एक ही पेन बन रहा है, ओके, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो अल्टीमेटली लगा लो कि एक ही कंपनी है पेन बना रही है, तो सपोज कर लो बेस ईयर में 100 पेन बने, तो मेरी जीडीपी क्या थी बेस ईयर में 100 इंटू 1000,
100 to 10 means this is my GDP in base year. अब मेरे को कंपेयर करना है आज से, तो अगर सपोज कर लो आज 200 पेन बने और मेरे को देखना है कितने पेन बने और कितने फाइनल गुड्स बने, तो अल्टीमेटली अगर मैं उसको 15 से करता हूं तो मेरी जीडीपी कितनी आ रही है, तो ये आएगी आपकी नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसमें क्या है 15 रुपीज प्राइस इन्फ्लेट है, सो ये कितना आएगा 3000. अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यू विल से दैट 1000 से 3000 जीडीपी इंक्रीज होगी. ओके, 1000 से 3000 आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी है. बट अगर मैं रियल जीडीपी देखता हूं, मींस प्रोडक्शन तो मैं इस साल की देख रहा हूं कि 200 पेन बने, बट प्राइसेस में ले रहा हूं पुराने वाले 10, ये मेरे को एक्चुअल फिगर देगी. ओके, तो आपको पता है कि कुछ दिन मतलब लास्ट ईयर एक फिगर चल रही थी $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये मेरी नॉमिनल जीडीपी थी, ये मेरी नॉमिनल जीडीपी थी. तो इस नॉमिनल जीडीपी को अगर मैं चाहूं अगले महीने इंक्रीज कर सकता हूं. अगर मैं थोड़े थोड़े हर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दूं अगले 10 दिन के अंदर, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, बट हमें क्या देखनी है, रियल. रियल विल टेल यू द एक्चुअल फाइनल प्रोडक्शन. क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब रियल जीडीपी लेते हैं तो हम बेस ईयर वाले प्राइसेस को कंसीडर करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग. और जब हम नॉमिनल जीडीपी लेते हैं तो हम बेस ईयर वाले नहीं, हम करंट ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करते हैं. क्लियर? अब एक बेसिक प्राइस भी होता है. अब जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ओके, तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, ओके, वाटर यूज कर रहे हो, प्लस अदर रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हो. ओके, तो इन प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है ये आप एज्यूम कर रहे हो बिना टैक्सेस के. ओके, बिना टैक्सेस के. अब आप क्या कर रहे हो, ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इन प्रोडक्ट को बना के इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा रहे हो, या आप ऐसे समझ लो कि ये जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर भी टैक्सेस है. क्लियर? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, जैसे जीएसटी, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टैक्स. उसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट टैक्स. क्लियर? तो ये जो प्रोडक्ट टैक्स लग रहा है आपका, ओके, ये जो प्रोडक्ट टैक्स लग रहा है, क्लियर, इसको हम कहेंगे जीएसटी. ओके, अब आ जाओ यहां पर एक प्रोडक्शन टैक्स भी होता है. ओके, एक प्रोडक्शन टैक्स भी होता है. क्लियर? तो वो प्रोडक्शन टैक्स क्या है आपका, ओके, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी और इसको भी दिया, तो जब आप इसको निकाल देते हो तो जो वैल्यू आती है, मतलब आप अपने फैक्टर कॉस्ट में से जब इन प्रोडक्शन टैक्सेस को निकाल देते हो, ओके, या फिर उसको जो प्राइस आएगा उसको हम कहेंगे बेस प्राइसेस, और उस पे जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं जीवीए. क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां पर हम प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करें तो अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्शन टैक्स होगा. ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स होगा, प्रोडक्ट टैक्स होगा, प्लस रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी. तो अल्टीमेटली ये सब मिला के आपका आता है बेस प्राइसेस. ओके, एंड यूजिंग दैट वी कैलकुलेट जीवीए. ओके, बट आपको याद रखना है, ज्यादातर आपसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पूछा जाएगा, या रियल जीडीपी पूछा जाएगा, या फिर नॉमिनल जीडीपी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग. ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, व्हेन दे कैलकुलेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, हाउ आर दे कंपेयरिंग. सी, देखो जीडीपी का अल्टीमेट पर्पस ही क्या है, आपको फाइनल प्रोडक्ट्स देखने कितने हैं, तो वो आपको तभी मिलेगा. ठीक है, क्लियर? डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली वो होती है कि जब आप अपने टैक्सेस वगैरह दे देते हो, क्योंकि यहां पर क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम लेके चल रहे हैं, जब आप सरकार को अपने टैक्सेस दे देते हो, ओके, या फिर आपको रेमिटेंस वगैरह भी आ रहे हैं उसको ऐड कर देते हो, तो जो इनकम एक्चुअल में आप अर्न कर रहे हो वो डिस्पोजेबल इनकम है. मतलब सारे, अगर सपोज कर लो मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, 5,000 मैंने टैक्स दे दिया और उसके बाद किसी रिलेटिव ने मेरे को गिफ्ट दे दिया 10,000 रुपए का, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, 45,000 प्लस 10,000, तो ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है. क्लियर? बट जीडीपी में हम लॉटरी, बेटिंग, गिफ्ट, ट्रांसफर पेमेंट इसको नहीं लेते हैं. क्लियर? तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो अगर आप देखोगे जीडीपी में हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करके कंट्री में कितना पैसा आ रहा है.
कितना पैसा है। ओके, उसके बाद अगर हमें ग्रांट्स भी हम अगर कंसीडर कर ले तो जीडीपी प्लस ग्रांट्स वो ज्यादा ही निकलेगा, आपका अमाउंट ज्यादा होगी। क्लियर? तो जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि इतनी मनी सप्लाई चल रही है, ओके, तो उससे ज्यादा ही चल रही होगी आपके पास। क्लियर?